Greetings to all. So, this is our next lecture, and today's topic is zone of metamorphism. In the previous lecture, we have completed igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rock. And one part of metamorphic rock is still remaining, that is zone of metamorphism. So, today's topic is zone of metamorphism. So, let's start. So as we know, metamorphic rock are those rock which are formed with the heat, pressure and temperature, and the most important fluid or important part is the chemically active fluid. So with the help of heat and pressure and temperature, the metamorphic rock is formed, and the most important part is the chemically active fluid which plays the important role to the formation of the metamorphic rock. And metamorphic rock are produced from igneous rock, sedimentary rock and other than the metamorphic rock also. So जैसा कि हम जानते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक हमारा थर्ड टाइप का रॉक है, और मेटामॉर्फिक रॉक हीट, प्रेशर, टेम्परेचर से फॉर्म होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा केमिकली एक्टिव फ्लूइड। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक ना सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होते हैं बल्कि डायरेक्टली इग्नेस रॉक से भी फॉर्म हो सकते हैं। सो मेटामॉर्फिक रॉक थर्ड टाइप का रॉक है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ फॉर्म विथ हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड। नाउ वी विल सी दी types of metamorphism. So type of metamorphism, so there are so many types of metamorphism, but in these we have some limited important types of metamorphism. That is, first is contact metamorphism. So contact metamorphism occurs adjacent to the igneous intrusion, a result from high temperature associated with the igneous intrusion. It is also called as the thermal metamorphism, and this is caused due to the local heat of the rocks by the intrusion of hot igneous rocks. So contact metamorphism एक ऐसा metamorphism है, ऐसा टाइप है मेटामॉर्फिज्म का जो कि इग्नियस रॉक इंट्रूजन के साथ होता है, और जिसको फॉर्म होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है विद इन दी इग्नियस इंट्रूजन। इग्नियस इंट्रूजन भी एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ लावा होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा होता है, उसको हम बोलते हैं इग्नियस इंट्रूजन। सो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म इग्नियस इंट्रूजन के साथ में फॉर्म होता है, और जिसके फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, थर्मल मीन्स हीट और टेम्परेचर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थर्मल मेटामॉर्फिज्म. This is caused due to the local heat of the rocks by the intrusion of hot igneous rocks. So igneous rocks सबसे ज़्यादा इसमें important होते हैं बिकॉज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म उस एरिया में होता है या उस रेंज में होता है जहाँ पे हमें इग्नियस का इंट्रूजन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा और बिकॉज ऑफ द इग्नियस इंट्रूजन ऑफ द रॉक्स. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म. Now second is hydrothermal metamorphism. So hydrothermal metamorphism is also a very important metamorphism in which one rock is altered to this another rock in the presence of high temperature and moderate pressure with the help of hydrothermal fluids. And this is common in basaltic rock that generally lack of hydrous minerals, and the hydrous or hydrothermal metamorphism result in the alteration to such magnesium iron rich hydrous mineral such as talc, chloride, serpentine, actinolite, tremolite, zeolite, clay and other than the clay minerals. सो हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म एक ऐसा मेटामॉर्फिज्म है जहाँ पे एक रॉक का दूसरे रॉक में अल्ट्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर, और ये एक रॉक से दूसरी रॉक में कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स. अब हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स क्या होते हैं? सो जब मैग्मा का कन्वर्जन होता है या मैग्मा का इंट्रूजन होता है तो बहुत सारे केमिकली एक्टिव फ्लूइड या हाइड्रोथर्मल फ्लूइड डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा. उस टाइप के हाइड्रोथर्मल फ्लूइड को या उस टाइप के फ्लूइड को हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, जिसमें वाटर का कंटेंट भी होता है और जिसमें हीट भी बहुत ज़्यादा होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीज़न द फ्लूइड इज़ कॉल्ड द हाइड्रोथर्मल फ्लूइड. सो हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में हमें एक रॉक से दूसरे रॉक में कन्वर्जन मिलता है या अल्ट्रेशन मिलता है विद द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर.
तो इस टाइप के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। और ये सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है बसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन में, क्योंकि हमें उसमें लैक ऑफ हाइड्रस मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म का जब अल्ट्रेशन होता है तो हमें मैग्नीशियम और आयरन रिच हाइड्रस मिनरल जैसे कि टाल, क्लोराइड, सर्पेंटीन, एक्टिनोलाइट, ट्रिमोलाइट, जियोलाइट एंड क्ले और बहुत सारे ऐसे ही मिनरल्स का फॉर्मेशन हमको उस चीज़ में देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। नाउ नेक्स्ट है हमारा रीजनल मेटामॉर्फिज्म। So regional metamorphism occurs over a large areas and generally does not show any relationship to the igneous body. So regional metamorphism एक ऐसा मेटामॉर्फिज्म है जहाँ पे वो एक बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में बनता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि वो मेटामॉर्फिज्म इग्नियस बॉडी के साथ या इग्नियस इंट्रूजन के साथ कोई रिलेशनशिप कंसिस्ट नहीं करता। तो उस टाइप के मेटामॉर्फिज्म को बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। और regional metamorphism usually result in forming metamorphic rock that are strongly foliated such as slate, schist and gneiss. So regional metamorphism में हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फोलिएटेड रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके एग्जांपल है स्लेट, शिस्ट एंड नाइसेस। सो ये है हमारा रीजनल मेटामॉर्फिज्म। एंड सेकेंड है हमारा कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। So, the metamorphism in which only directed pressure and lateral stress play the dominant role is called the cataclastic metamorphism. So, metamorphism एक ऐसा प्रोसेस होता है, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हमको डायरेक्टेड प्रेशर और लेटरल स्ट्रेस देखने के लिए मिलते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मॉर्फिज्म में हमें डायरेक्टेड प्रेशर और लेटरल स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उस टाइप को बोलते हैं हम कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। अब वो डायरेक्टेड प्रेशर और स्ट्रेस कहाँ से आता है? तो डायरेक्टेड प्रेशर हमको मिलता है मूवमेंट और टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट, उसकी वजह से हमको डायरेक्टेड प्रेशर देखने के लिए मिलता है। और अगर स्ट्रेस की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ अर्थ मूवमेंट जो चेंजेस आते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, जैसे फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेसेस। सो ये है हमारा फोल्डिंग और फॉल्टिंग, जिसकी वजह से हमको स्ट्रेसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ड्यू टू डेट डिस्टर्बेंस इन दी अर्थ क्रस्ट, वहाँ पे कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म होता है। और कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म को हम एक इम्पॉर्टेंट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प टू फॉर्म दी कैटाक्लास्टिक रॉक। और जो रॉक उस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं या उस मेटामॉर्फिज्म के थ्रू फॉर्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटाक्लास्टिक रॉक। सो दिस इज द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। नाउ नेक्स्ट है जोन ऑफ मेटामॉर्फिज्म। अब हमने टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म देख लिया कि किस किस टाइप के मेटामॉर्फिज्म होते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस है, कैसा टेम्परेचर है और कैसा प्रेशर है। अब हम बात करेंगे जोन ऑफ मेटामॉर्फिज्म की। सो देयर आर 3 बेसिक टाइप और जोन ऑफ मेटामॉर्फिज्म, दैट इज एपिजोन, मेसोजोन एंड कैटाजोन। सो एपिजोन मेटामॉर्फिज्म occurs near the earth's surface, or in this zone the temperature is about 200 to 400 degrees Celsius. Mesozone, then second is the mesozone. Mesozone is the intermediate zone of metamorphism which lies below the epizone, and the temperature is about 400 to 600 degrees Celsius. Now the last one is catazone. So this is the bottommost zone of metamorphism, is called the catazone, and in this zone the plutonic metamorphic rocks take place. The temperature of this zone is about 600 to 800 degrees Celsius. So जोन ऑफ मेटामॉर्फिज्म 3 मेन डिवीजन में डिवाइड हुए हैं, और या 3 मेन जोन है जिसको हम बोलते हैं एपिजोन, मेसोजोन एंड कैटाजोन। एपिजोन की बात करें तो एपिजोन मेटामॉर्फिज्म का सबसे पहला वाला जोन होता है जो अर्थ सरफेस के पास में होता है, और अगर इसका टेम्परेचर की बात करें तो इसके टेम्परेचर होता है 200 टू 400 डिग्री सेल्सियस। नाउ थर्ड इज द मेसोजोन। मेसोजोन एक इंटरमीडिएट जोन है मेटामॉर्फिज्म का, जो कि एपिजोन के नीचे होता है,
और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर होता है 400 to 600 डिग्री सेल्सियस। और नाउ थर्ड वन इज कैटाजोन। कैटाजोन जो है वो एक बॉटम मोस्ट जोन है मेटामॉर्फिज्म का, जो मेसोजोन के नीचे होता है और उसका टेम्परेचर होता है 600 to 800 डिग्री सेल्सियस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैटाजोन में हमको प्लूटोनिक रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 3 टाइप के रॉक होते हैं, वॉल्केनिक रॉक, हाइपरबेसल रॉक एंड प्लूटोनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक वो रॉक होते हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉर्म होते हैं। हाइपरबेसल रॉक वो रॉक होते हैं जो अर्थ सरफेस के बीच में फॉर्म होते हैं। और प्लूटोनिक रॉक वो होते हैं जो एट दी डीप क्रस्ट लेवल में फॉर्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। सो जो कैटाजोन है वहाँ का टेम्परेचर 600 to 800 डिग्री सेल्सियस होता है और वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा प्लूटोनिक रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। So this is the zone of metamorphism and the three main zone is epizone, mesozone and catazone. So ये जो जोन है हमारे, ये टेम्परेचर के ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इसका डिवीजन हुआ है। सो जोन ऑफ मेटामॉर्फिज्म आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द temperature. So epizone is 2 to 4 and mesozone is 4 to 6 and catazone is 6 to 8. Now next is grades of metamorphism. जैसे कि हमने जोन देखा, अब हम बात करेंगे ग्रेड्स की। ग्रेड क्या होते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ मेटामॉर्फिज्म that has affected a rock is called grade of metamorphism. So on the basis of degree और intensity, जो भी डिग्री है पर्टिकुलर रेंज का और जो उसकी इंटेंसिटी है, डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ मेटामॉर्फिज्म जब कोई रॉक को अफेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। So on the basis of these we have three main grades, that is very low grade, medium grade and high grade. इस स्ट्रक्चर में या इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास थ्री मेन ग्रेड है। दिस इज़ लो ग्रेड, दिस इज़ इंटरमीडिएट ग्रेड एंड दिस इज़ हाई ग्रेड। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड इंटेंसिटी ऑफ मेटामॉर्फिज्म, जो कि रॉक को अफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म वी आर थ्री टाइप ऑफ ग्रेड्स, दैट इज़ वेरी लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड। लो ग्रेड की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 400। हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड और इंटरमीडिएट ग्रेड की बात करें तो इट इज़ 4 to 600। और अगर हाई ग्रेड की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 1000 और 800। सो ये है हमारे ग्रेड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है स्लेट एंड फाइलाइट। सो हमको स्लेट मिलता है इंटरमीडिएट या लो ग्रेड में, वही कन्वर्ट होता है हमारे हाई ग्रेड में तो वो बन जाता है फाइलाइट। So this is the grade of metamorphism. So don't be confused, zone of metamorphism is different, which is divided on the basis of temperature, and grade of metamorphism, which is the degree and intensity of metamorphism which has affected our rock, which is called the grade of metamorphism. And we have three types of grade of metamorphism, that is low grade, very low grade, medium grade or intermediate grade and high grade. And example है हमारा slate and phyllite. सो दिस इज़ दी इमेज। इस एरो में हम ये देख सकते हैं कि ये एरो इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर का है। यहाँ पे हमको मेल्टिंग बिगिंस दिखा रहा है और ये इमेज हमको ट्रांसफॉर्मेशन और अल्ट्रेशन बता रहा है। ये लो ग्रेड है और ये हाई ग्रेड है। और डायजेनेसिस क्या होता है ये हमने सेडिमेंट्री फॉर्मेशन के टाइम पे देख चुके हैं कि व्हाट इज़ डायजेनेसिस। और अगर आपको डायजेनेसिस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज़ डायजेनेसिस। वी हैव डिस्कस दी डायजेनेसिस इन द रॉक साइकिल लेक्चर। सो प्लीज़ टेल व्हाट इज़ डायजेनेसिस। सो डायजेनेसिस से बनता है हमारा शेल जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये मेटामॉर्फिज्म को डिफाइन कर रहा है। तो जो हमारा लो ग्रेड रॉक है डेट इज स्लेट, वो लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है। जब वो हाई ग्रेड, उसको जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो वो फाइलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अ हाई ग्रेड। और अगर उस फाइलाइट को और ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो वो शीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। So this is the increasing temperature and pressure, that is slate is converted into phyllite, then phyllite is converted into schist. So this is the हमारा grade of metamorphism and which indicate the increasing temperature and pressure.
Now if we're talking about that is sedimentary, which is commonly formed with the help of clay. Slate की बात करें तो chlorite and muscovite, biotite, garnet, kyanite, this is all the zone of metamorphism. And this is feldspar and quartz. So quartz is nothing but a igneous rock and which contain the silica percentage, and it is totally made up of silica, that is SiO2. Now next and the last is zone of progressive regional metamorphism. सो जैसे कि हमने देखा जोन ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो तीन डिवीजन में डिवाइड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, हमारे पास अगेन 5 टाइप के जोन हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म में डिवाइड हुए हैं. रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या है? रीजनल मेटामॉर्फिज्म हमारा टेम्परेचर बेस मेटामॉर्फिज्म है जहाँ पे रॉक का अल्ट्रेशन होता है पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर में. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जोन ऑफ प्रोग्रेसिव रीजनल मेटामॉर्फिज्म में 5 टाइप के जोन आते हैं. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है इन डिग्री सेल्सियस. ये हमारा टेम्परेचर है और ये जो बैंड्स दिख रहे हैं कलरफुल, जिसका हर एक बैंड्स एक दूसरे से अलग है, तो ये हमारे 5 टाइप के जोन है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म. सो ये हमारा क्लोराइड जोन है, ये हमारा बायोटाइट जोन है, गार्नेट, एंडोलिसाइट, सिलिमनाइट. सो दीज आर दी 5 मेन टाइप ऑफ जोन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म. जैसा कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो सिलिमेनाइट की अगर बात करें, सिलिमेनाइट जोन की, तो इसका टेम्परेचर या इसका रेंज है कुछ 800 से 700, या हम ऐसा बोल सकते हैं 7 to 800. तो इतने टेम्परेचर में जो भी रॉक इस पर्टिकुलर जोन में फॉर्म होंगे तो वो आएंगे हमारे सिलिमेनाइट जोन में. वही सेम एंडोलिसाइट की बात करें तो ये है हमारा 6 to 7, मतलब 600 to 700 डिग्री सेल्सियस. और इस पर्टिकुलर रेंज और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में जितने भी रॉक फॉर्म होंगे तो वो हमारे आएंगे एंडोलिसाइट जोन में. इस तरीके से सारे गार्नेट जोन, बायोटाइट जोन एंड क्लोराइड जोन, ये सारे जोन है और इसमें जितना भी रॉक का जो भी असेंबलेज होता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो उस जोन में कंबाइन हो जाता है. जैसे क्लोराइड जोन की बात करें तो 100 से लेके 200 तक के टेम्परेचर में जो भी रॉक उस पर्टिकुलर रेंज में या टेम्परेचर में फॉर्म हो रहा है, तो उस टाइप के रॉक को उस टाइप के जोन को हम बोलेंगे क्लोराइड जोन. और उसमें जितने भी रॉक आते हैं वो सब हमारे क्लोराइड जोन का एक पार्ट हो जाता है. सो दिस इज द जोन ऑफ प्रोग्रेसिव रीजनल मेटामॉर्फिज्म. सो this is our boundary of mental. So this is all about the zone of metamorphism. We have seen the type of metamorphism and then zone of metamorphism, and this is the zone of progressive regional metamorphism. So so this is all about the zone of metamorphism, and this is the end of the lecture. If you have any question or doubt regarding with the lecture, regarding with the unit, you can ask in the comment section. And one more thing is, we have completed our second unit, and if you have any doubt in the second unit, you can ask in the comment section and mention your name, roll number. Stay safe, stay healthy. Thank you.